زدني علما رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدني علما فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض ورب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد نبينا أمي وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد نبينا أمي وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم. So getting back to our book, what we were doing was supporting the distress against the trick of shayateen. कैसे हम अपनी हिफाजत करें किससे शयातीन के वार से अब हम लोग सुबहान अल्लाह अपनी ज़िंदगी में नई नई we're having our different aims, we're making a different motto. हम लोग अपनी ज़िंदगी में अलग अलग किस्म की जो है चाहत रख रहे हैं हम चाहते कि हम और सबसे बड़ी चाहत क्या है सबसे बड़ी चाहत ये कि अल्लाह ताला हमें एक अच्छा मुसलमान बना दीजिए या अल्लाह हमें एक अच्छा नेक मोमिन इंसान बनाइए ताकि हम जब तक दुनिया में हैं हमारा दुनिया में जो है जितना वक्त है वो अच्छे से गुजरे फिर जब ज़िंदगी में बहुत कुछ हमें करना है राइट ज़िंदगी के बाद फिर हमें जो है ज़िंदगी के बाद का हमें बहुत बड़े इम्तिहान को सामना करना है ज़िंदगी में हम हैं आप ये देख सकती हैं रोज़ एवरी डे हमारे हर दिन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई इम्तिहान होता है देयर इज सम काइंड ऑफ टेस्ट एनी समवेयर हिडन And every test comes with a blessing, every blessing comes with a test, याद रखिएगा तो जो इम्तिहान है हम अपने इम्तिहान में कितने अच्छे से अपने आप को जो है पेश कर पा रहे हैं कैसे हम उसका सामना कर पा रहे हैं जो हमारे टेस्ट हो रहे हैं मैक्सिमम टाइम हम क्या करते हैं हम अपने टेम्पर को लूज कर देते हैं वी बिकम शॉर्ट टेम्पर्ड हम अपने पेशेंस को रख नहीं पाते हैं अक्सर हम जो है अपने गुस्से से रिएक्ट करने लगते हैं गुस्साने लगते हैं जवाब देने लगते हैं there are different ways of reactions the point is we are still not able to become a better human being अभी भी हम अपने आप को एक बेहतर मुसलमान नहीं बना पा रहे हैं क्यों क्योंकि अभी भी हमारे अंदर सब्र का मादा नहीं आ पा रहा है we're not getting that tolerance हमारे अंदर सब्र नहीं आ पा रहा है इसके लिए क्या करना है इसके लिए हमें अपने सही इल्म को हासिल करना है जब तक हम सही इल्म हासिल नहीं करेंगे तब तक हम एक बेहतर इंसान मुसलमान नहीं बन सकते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे जो मिसाल यहाँ बताए जाते हैं हमारी मिसाल हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है खुलुकुल अज़ीम है खुलुकुल कुरान है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे बने इल्म से बने जितना ज़्यादा इंसान इस इल्म को हासिल करेगा सही नॉलेज बेनिफिशियल नॉलेज को हासिल करेंगे उतना ज़्यादा हम एक बेहतर मुसलमान बन सकते हैं अपने अंदर पेशेंस ला सकते हैं टॉलरेंस ला सकते हैं जब कोई ऐसी बात हो जो आपको नापसंदीदा गुजरे वहाँ पे आप खामोशी से हट सकती हैं ना कि आप रिएक्ट कीजिए ना कि आप कोई ऐसा काम कीजिए जिससे सामने वाले को तकलीफ हो
تو یہ تمام چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ تمام چیزیں ٹرکس اور شیاطین ہیں۔ شیطان چاہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہم ایسا کریں جس سے ہمارے اعمال بگڑیں، جس سے ہمارے قول بگڑی، جس سے ہمارے اخلاق بگڑے، جس سے ہمارے دماغی سکون بدلے، جس سے ہمارا دل کا چین برباد ہو۔ تو شیطان تو چاہتا ہے کہ انسان ہر وقت کیا رہے، ڈسٹرب رہے۔ کیوں چاہتا ہے وہ؟ جب آپ ڈسٹرب ہوں گے تو آپ کیا کرتی ہیں؟ جب ہم ڈسٹرب ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ٹینشن لیتے ہیں، ہم ڈپریس ہوتے ہیں، ہم اسٹریس لیتے ہیں۔ کتنا ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے ٹینشن کے ٹائم پہ ہم ہر چیز کو چھوڑ کے جا کے اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، یا ہم ہر چیز کو چھوڑ کے 2 رکعت نفل پڑھیں۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے۔ یہی تو شیطان نہیں چاہتا کہ انسان اللہ تعالیٰ سے جڑے۔ اب ہم اللہ تعالیٰ سے جڑ نہیں پا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کنیکشن ہم بلڈ نہیں کر پا رہے ہیں۔ کیسے ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ کنیکشن بلڈ کریں گے؟ کیسے ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اپنے اعمال میں کنیکشن بلڈ کریں گے جب ہمارا بیسک ایمان کا کنیکشن نہیں ہو پا رہا ہے ابھی؟ تو بہت ضروری پیاری عزیز بہنوں، this is the basic that we need to learn today. We need to support ourselves against the tricks of shayateen. We need to know what are the tricks of shayateen. If you don't know what are the tricks of shayateen, how will you support yourself? جب مجھے یہی نہیں پتا کہ شیطان میرے اوپر کن کن طریقوں سے وار کرتا ہے، تو میں کیسے اپنے آپ کو بچاؤں گی شیطان کے جو ہے وار سے؟ تو بہت ضروری کہ انسان اپنے آپ کو علم میں ڈالے۔ تو ہم جو بات کر رہے تھے وہ یہ بات ہو رہی کہ کیسے اپنے آپ کو ہم شیطان یا نفس، اپنے دل کو ہم کیسے نفس کے ڈومیننس سے بچائیں، یا اپنے ایول جو ہمارے جو شر جو ہوتی ہے، کیسے اپنے آپ کو شر سے روکیں۔ اس کے لیے ہم اس چیپٹر کو پڑھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں، جہاں پہ بتایا جا رہا ہے الگ الگ انداز میں۔ سب سے ضروری چیز ہمیں یہ پڑھی ہے کہ 3 قسم کے نفس ہوتے ہیں۔ There are 3 types of نفس۔ 3 قسم کے نفس ہوتے ہیں۔ There are 3 types of dominance of soul over the heart. What does nafs mean? Nafs is nothing but your soul. Nafs is nothing but your inclination in you that inclines you towards good or bad, towards good or evil. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اپنے نفس کو پاک کر لے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، جو اپنے نفس کو پاک نہیں کرے گا وہ برباد ہو جائے گا۔ اللہم نجنی من النار۔ تو آج ہم لوگ کیوں یہاں آ رہے ہیں؟ آج ہم لوگ کیوں یہاں بیٹھ رہے ہیں؟ آج ہم لوگ کیوں ان باتوں کو سیکھ رہے ہیں؟ صرف وہ ایک وجہ ہے، تاکہ وہ اپنے نفس کو پاک کر سکے، اپنے آپ کو ایک بہتر مسلمان بنا سکے باذن اللہ۔ تو 3 قسم کے نفس ہوتے ہیں۔ ایک ہے نفس مطمئنہ، مطمئنہ جو اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر میں بتا دیا ہے کہ وہ نفس جو مطمئن ہے۔ کیسے مطمئن ہے؟ اپنے رب کے ساتھ مطمئن ہے۔ کم کھانے کو ملا الحمدللہ، زیادہ کھانے کو ملا الحمدللہ، کپڑا جو ہے بہت مہنگا نہیں ملا الحمدللہ، سوتی ہے الحمدللہ، گھر پہ چھت ہے الحمدللہ۔ You are happy with your basics. You're happy with whatever Allah Ta'ala has blessed you with. You're not complaining, you're not whining. That is نفس المطمئنہ، کہ آپ کو کسی نے پوچھا بھی نہیں، آپ کسی جگہ گئی تھیں، وہاں پہ لوگوں نے آپ کو اگنور کیا، آپ نے کہا الحمدللہ، that's okay۔ اب آپ اس کو ایشو نہیں بنا رہی ہیں، اس کو لے کے آپ لڑ جھگڑ نہیں رہی ہیں، اس کو لے کے اپنے دل میں آپ برائی نہیں پال رہی ہیں۔ یہ نفس المطمئنہ ہے۔ یہ وہ نفس ہے جو ہر حال سے اپنے اللہ تعالیٰ سے کیا ہے؟ راضی ہے، اللہ تعالیٰ سے ناراض نہیں ہوتی ہے، شکر گزاری کر رہی ہوتی ہے۔ زیادہ ہے الحمدللہ رب العالمین، کم ہے الحمدللہ علی کل حال۔ تو آج ہم لوگ کو اپنے آپ کو ایک بہتر انسان بنانا ہے۔ آپ سوچیں کہ ہم لوگ ابھی جس دور میں گزریں گے، یا ابھی ہم جس دور میں داخل ہونے والے ہیں، ہم نہیں جانتے کیا فتنہ ہمارے سامنے ہے۔ None of us know what is the fitna awaiting us in the coming days. Nobody knows that except Allah Azza wa Jal. But yes, we can prepare for that. We can prepare to be a stronger believer, to fight all kind of trials and tribulations. ہم اب آج محنت کر سکتے ہیں ایک مضبوط مسلمان بننے کی، تاکہ ہم آنے والے فتنوں کا سامنا کر سکیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور ہمیں یقین ہے، کیسے یقین ہے ہمیں؟ کیونکہ ہمارے پاس مثال موجود ہے۔ کس کی مثال موجود ہے؟ ہمارے پاس ابراہیم علیہ السلام کی مثال موجود ہے، ہمارے پاس نوح علیہ السلام کی مثال موجود ہے، ہمارے پاس لوط علیہ السلام کی مثال موجود ہے، ہمارے پاس موسیٰ علیہ السلام کی مثال موجود ہے، ہمارے پاس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال موجود ہے، کہ جب ان لوگ کے سامنے بڑا امتحان آیا، اپنے قوم کو لے کے، اپنے ایمان کو لے کے، اپنے لوگوں کو لے کے،
अल्लाह ताला ने उनको फ़तह दिया, अल्लाह ताला ने इनकी हिफ़ाज़त की, अल्लाह ताला ने इनको इस फ़ितने से ऐसे निकाला जैसे कभी ये गुमान नहीं कर सकते थे। तो क्या कहा जा रहा है? सिंपल सी बात की जा रही है, अगर मैं अपने इस आराम के वक़्त में, जो मैं अभी आराम के वक़्त में हूँ, मेरे पर कोई टेंशन नहीं है, मैं अपने घर में हूँ, खाना खा रही हूँ, अपने छत के नीचे हूँ, उठ रही हूँ, बैठ रही हूँ, अपने काम कर रही हूँ, अपने बच्चों को देख रही हूँ, व्हाटएवर दैट इज़, आई एम डूइंग सेफली इन माय होम। This is a biggest नियमा right now. This is the biggest आफियत that you have. अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है आपके ऊपर। अगर मैं इस नेमत के वक्त में अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी करूंगी, इस्तगफार करूंगी, नेकिया करूंगी, हम अपने आप को कल के फितने के लिए तैयार कर रहे हैं। क्योंकि मुझे यकीन है जो कल के जो फितने अब आएंगे, मैं नहीं जानती, वेव 3 वेव 4, पता नहीं क्या आने वाला है, अल्लाह आलम, मैं नहीं जानती, और ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम क्या है कि मैं इस वक्त अपने आप को अच्छा मुसलमान बना लूँ, तौबा से, इस्तगफार से, अस्कार से, कलाम पाक की को हिफ्स करके, कलाम पाक को समझ करके, उसके ऊपर अमल करके। जब मैं ये काम करूँगी तो मैं कल के फितने के लिए अपने आप को, अपने घर वालों को, अपने बच्चों को तैयार कर रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत खुशी होती है कि जब हम कोई यहाँ वहाँ की दुनिया की बात करते हैं और बच्चे हमें ठीक करते हैं, ये याद दिला कर के, मम्मा आपने अल्हम्दुलिल्लाह कहना है, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, ये कैसे होता है? कभी कभी मैं सोचती हूँ तो कहती हूँ, अल्लाह ताला ये सिर्फ और सिर्फ आपकी तरफ से ये नेमत है, आप ये चीज़ कर रहे हो, कोई नहीं कर सकता है ये कब होगा? जब हम अपने आप को अल्लाह ताला के लिए तैयार करेंगे और अपने आप को शैतान के वसवसों से, वार से रोकेंगे। जब आप ये जद्दोजहद करेंगी एक अच्छे मुसलमान बनने की, आपकी मदद कौन करेंगे? अल्लाह ताला करेंगे। तो आज हमें इस बात को समझना है प्यारी अजीज़ बहनों, हमें अपने आप को एक बेहतर मुसलमान बनाना है। वितर की नमाज को ना छोड़िए। मैं जानती हूँ कुछ लोग की मामूल बन जाता है, हम ये सोचते हैं अरे वितर ही की तो नमाज है, छोड़ दो, थक गए हैं, नींद आ रही है, छोड़ दो, जाके सो जाओ। आपको पता है कि अगर हम वितर की नमाज पढ़ेंगे तो हम अल्लाह ताला के करीब होंगे। तो जब जब मामला अल्लाह ताला का आ जाता है, अल्लाह ताला के करीब होने का आ जाता है, तब तुम इस मामले को ना छोड़ें, इस अमल को ना छोड़ें हम। कलाम पाक को पढ़ने से हम अल्लाह ताला के करीब हो जाते हैं। दुआ अस्कार करने से अल्लाह ताला के हम करीब हो जाते हैं। तौबा इस्तग़फ़ार करने से हम अल्लाह ताला के करीब हो जाते हैं। तो क्या हम इन बातों को छोड़ें? बिल्कुल ना छोड़ें। जितना ज़्यादा आप अल्लाह ताला को याद करेंगी, ज़िक्र करेंगी, उतना ज़्यादा अल्लाह ताला हमारे सामने एक ढाल बना देते हैं, हमारी हिफाज़ती का, एक शील्ड बना देते हैं। क्या हम ये ढाल नहीं चाहते? अपने आगे, अपने बच्चों के आगे, अपने शौहर के आगे? ये कैसे होंगी ये चीज़ें? जब हम अल्लाह ताला की मारिफत समझेंगे, जब हम अल्लाह ताला को जानेंगे, जब अल्लाह ताला की ताकत को पहचानेंगे, जब अल्लाह ताला की वहदानियत को पहचानेंगे, जब अल्लाह ताला को अर्रज़ाक होने को हम पहचानेंगे, जब अल्लाह ताला को अर्रहमान और गफ़ूर रहीम पे हम पहचानेंगे, तब जाके ये सारी नेमतें हमारे घर में, हमारे अंदर, हमारे दिल में दाखिल होंगी बिइज़्निल्लाह। क्या हम नहीं चाहते? क्या आज हम नहीं चाहते एक बेहतर मुसलमान बने इंशाअल्लाह ताला? अपनी सारी ज़िंदगी हमने बर्बाद की है, दुनियादारी में, यहाँ-वहाँ की बातों में, गुनाहों में, गुस्ताखी में, उल्टी-सीधे कामों में, नाउज़ुबिल्लाह। आज हमें मौका मिल रहा है, अल्लाह ताला हमें फिर से एक मौका दे रहे हैं। सोचिए आज हम कितने खुशकिस्मत हैं कि आज हमें फिर से एक दिन, नया दिन मिला है। कितने लोग आज इस नया दिन पे उठ नहीं पाए हैं, ख़त्म हो गए आज। मलिकुल मौत आए, उनकी उनकी रूह को कब्ज़ करके ले गए। मगर अल्लाह ताला ने हमें आज फिर से एक नया मौका दिया है कि हम अपने आप को बदल लें। अपने सर पे हिजाब ले आएँ, अपने सीने पे दुपट्टा ले आएँ, अपने ज़ुबान पे कलमा तौहीद ले आएँ, अपने दिल में नूर ले आएँ बिइज़्निल्लाह। क्या करके? सिर्फ़ और सिर्फ़ इस्तिग़फ़ार, अल्लाह ताला को याद करके और अपने आप को शयातीन के वार से बचा के इंशाअल्लाह ताला। Really, we don't have time. We're running out of time. The clock is tick-tocking. There's no time. हमारे पास वक़्त नहीं है। टक, टक, टक वो जो है सेकंड्स की जो है ये हाथ चलता जा रहा है। हमारे पास वक़्त नहीं है और क़यामत के दिन हम ही लोग क्या करेंगे? अल्लाह ताला से अफ़सोस बज़ाहिर करेंगे कि या अल्लाह ए नफ़्सुल लव्वामा। तो तीसरा हमने नफ़्स क्या पढ़ा था? नफ़्सुल लव्वामा। कौन-सा नफ़्स होगा? This is the one which will blame itself on the day of judgment, on the day of resurrection. The righteous man will blame his soul for not doing much more.
and the bad person will blame it for not giving up the bad acts. तो इस बात पे कोई शक है? कोई शक नहीं है इस बात में प्यारी अजीज बहनों. 0%, there is no doubt in these texts or in these wordings of Allah Azza wa Jal कि क़यामत के दिन नफ्सुल लवामा अल्लाह ताला ने सूरह क़यामत में दूसरी आयत में नफ्सुल लवामा की कसम खाई है कि कसम है नफ्सुल लवामा पे. और ये नफ्सुल लवामा क्या है कि क़यामत के दिन यही नफ्स आएगी. नेक लोग कहेंगे या अल्लाह मैं नेकी नहीं कर सका, बद इंसान आएगा कहेगा कि या अल्लाह वो बदी छोड़ ना सका. जबकि हमारे पास दुनिया में वक्त है, हमारे पास इतना वक्त है कि हम सुकून से खाना पका रहे हैं, बच्चों को वक्त दे रहे हैं. We have ample of time on our hand to do istighfar, to realize our mistakes, to take the responsibility for accountability. We have ample of time, but are we utilizing it? La ya habibti, we're not doing that. We're just wasting our time, doing nothing, not even thinking about our akhirah. Never. कहाँ हम सोच रहे हैं आखिरत के बारे में, क्योंकि अगर हम आखिरत के बारे में सोचते तो आज हमारा ये हाल ना होता. अंदर से इतने खोखले ना होते हम लोग आज. हमारे चेहरों पे नूर होता, हमारे दिलों में नूर होता, हमारे ज़िंदगी में नूर होता. आज आप देखिए हम कितने खामोश हैं, कितने बुझे हैं, कितनी तकलीफ में हैं. क्यों? क्योंकि हम अल्लाह ताला को याद नहीं कर रहे हैं. अगर आज हम अल्लाह ताला को याद करने लग जाएं तो ये अल्लाह ताला का जिक्र हमें दुनिया में भी फ़ायदा पहुँचाएगा और आखिरत में भी फ़ायदा पहुँचाएगा. मगर सोचते कहाँ हम इस तरीके से? हमने तो बस दुनिया ही को सोचना है. फलां ने ये कह दिया, फलां ने वो कर दिया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, बच्चे ऐसे हैं, शौहर ऐसा है, लोग ऐसे हैं. जस्ट कंप्लेनिंग. कब तक कंप्लेन करेंगे हम? इस कंप्लेन से किसको नुकसान पहुंच रहा है प्यारी अजीज बहनों? जिसको आप सुना रही नहीं, जो कह रहा है, जो हमें नुकसान पहुंच रहा है. Let us stop complaining. Let us start making the zikr of Allah Ta'ala. Let us stop complaining and let us start repenting. कंप्लेन करना हम बंद करें, अल्लाह ताला से तौबा करना हम शुरू करें, अगर हम सही में चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो और नाराज़ ना हो बिइज़्निल्लाह. तो यही है प्यारी अज़ीज़ बहनों कि अल्लाह ताला हमें ये इल्म दे रहे हैं और हम इस इल्म को समझें, नज़रअंदाज ना करें. Let us not overlook this knowledge, but rather implement on these knowledge inshallah ta'ala. How? Allahumma anfa'ani bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. ए अल्लाह, आज मैं जो कुछ भी सीख रही हूँ, या अल्लाह मुझको उसमें नफ़ा दे दे, और या अल्लाह मुझे वो इल्म सिखला दे जो मैं नहीं जानती हूँ या अल्लाह ताला, और मेरे इल्म में इजाफा करे या अल्लाह. ये दुआ एक प्यास है, ये दुआ एक पुकार है, ये दुआ एक भूख है, नफ्स की, रूह की, क़ल्ब की, इंसान की, कि या अल्लाह मुझे जो कुछ भी मैं आज सीख रही हूँ उसमें मुझे आप नफ़ा दें. क्योंकि प्यारी अजीज़ बहनों, हम लोग कितना कुछ सीखते रहते हैं, क्या हमें फ़ायदा हो पा रहा है आज भी? नहीं. आप सोचिए इसको. लेट अस थिंक अगेन कि जब भी मेरे ऊपर कोई सिचुएशन आती है, टाइट सिचुएशन आती है, या कोई मेरा इम्तिहान होता है, या कोई कलामिटी या कोई मुसीबत आती है, या कोई कोई मुझसे बदसलूकी करता है, या कोई मेरे साथ कोई बदजुबानी करता है, या कोई मेरे साथ बद अखलाकी करता है, तो मैं उस वक्त कैसे होती हूँ? मैं क्या मैं खामोश होती हूँ? क्या मैं मुस्कुराती हूँ? क्या मैं अल्लाह ताला को याद करती हूँ? या क्या मैं खामोशी से वहाँ से चली जाती हूँ? या क्या मैं उनसे लड़ती हूँ, मैं उनको जवाब देती हूँ, मैं बदतमीज़ी करती हूँ? अगर मैं जवाब दे रही हूँ, अगर मैं उनसे बदज़ुबानी कर रही हूँ, अगर मैं उनसे बदसलूकी कर रही हूँ, मेरे अंदर अभी भी इल्म का फ़ायदा नहीं हो रहा है. क्योंकि जिसके अंदर इल्म का फ़ायदा होगा वो अमल करेगा. आज हम अमल ही नहीं कर पा रहे हैं ना, तो क्या फ़ायदा? इतना हम यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, इनकी सुन रहे हैं, उनकी सुन रहे हैं, ये बात सुन रहे हैं, वो बात सुन रहे हैं, हर लेक्चर्स हम सुन रहे हैं. अमल कहाँ है? अमल ज़ीरो है, सिफ़र, ज़ीरो. We really need to work on ourselves. I'm telling, it's for me, it's for all of us today. We really have to work on ourselves. कि अब हम किसी के सामने रिएक्ट ना करें, खामोश हो जाएं, हट जाएं, सब्र करें, अल्लाह ताला के अपने भरोसे को बांधें. मैं कभी कभी सोचती हूँ अल्लाह ताला, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 80 साल तक सब्र किया एक औलाद के, अल्लाह ताला की औलाद की नेमत को हासिल करने के लिए. मरियम अलैहिस्सलाम ने कितना लंबा, अल्लाह अकबर, कितना बड़ा इम्तिहान का सामना किया कि उनको औलाद हुई.
اور कैसे कैसे लोगों ने उनके साथ कितना उनको बुख्तान, कितनी उनको उल्टी सीधी बातें कही। ये मिसाल मौजूद है हमारे सामने। सोचिए उनका क्या वक्त रहा होगा, कितना बड़ा इम्तिहान रहा होगा उनका। सारा अलैहिस्सलाम, सोचिए कि उनको कितनी उम्र तक उनको औलाद नहीं हुई, कितने कितने लोगों ने उनको उनको सोचिए क्या किस चीज़ से नहीं गुजरी होंगी वो तकलीफ़ों से। हम भी उस तकलीफ से गुजरते हैं दुनिया में, लोग हमें भी बातें सुनाते हैं, मगर क्या था उनके अंदर? अमल था, उनके अंदर ईमान था, उनके अंदर सब्र था। मगर आज हम लोगों में ना सब्र है, ना अमल है, नाउज़ुबिल्लाह। इसीलिए आज हमें अपने आप को बदलना है इंशाअल्लाह ताला। अगर हम अब नहीं बदलेंगे तो फिर कब बदलेंगे हम? वक्त तो गुजरा जा रहा है, साल पे साल गुजर रहे हैं। ओ, हम लोग की उम्र जो है कहाँ जा रही है? खात्मे की तरफ जा रही है, कब्र की तरफ जा रही है। मगर आज भी हम एक बेहतर इंसान नहीं बन पा रहे हैं। अल्लाह ताला हम पे रहम करें। इसीलिए प्यारी अज़ीज़ बहन, एक छोटी सी दुआ है। वो दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी वअल्लिमनी मा यनफ़अनी वज़िदनी इल्मा। कि अल्लाह, मुझे जो कुछ भी मैं आज सीख रही हूँ उसे मुझे आप मुझे नफ़ा दीजिए या अल्लाह ताला। मुझे सिखलाएं जो मैं नहीं जानती हूँ अल्लाह ताला, और मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमाएं। आमीन या रब। These so these are the four stages which a person needs to examine his soul before he embarks on doing something. जो भी आप करने जा रही हैं, सुभान अल्लाह, जो भी आप करने जा रही हैं अपनी ज़िंदगी में, मैं यहाँ पे एक बात खुल के कहूँगी कि जो लोग अ, लोगों के साथ बदसलूकी करते हैं, अपने घर वालों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, अपने अजीज़ रिश्तेदारों के साथ, जहाँ जहाँ भी आपके अंदर शॉर्ट कमिंग्स हैं, उन चीज़ों को आप रीचेक करेंगी। आज से हम जो कुछ भी करने जाएँगे, उससे पहले हम 2 दफ़े सोचेंगे या 3 दफ़े सोचिए आप। चेक, डबल चेक, ट्रिपल चेक कि क्या मैं ये करूँ ना करूँ? क्या मैं ये कहूँ ना करूँ? क्या मैं उनके साथ ये रवैया रखूँ या ना रखूँ? क्योंकि अगर मैं ये करूँगी, तो क्या अल्लाह ताला से मुझसे खुश होंगे या नाराज़ होंगे? We have to check this. We have to change ourselves इंशाअल्लाह ताला। Let people say whatever they want to say. लोगों को जो कहना है कहने दें, इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे किस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि अल्लाह ताला मेरे लिए क्या कहते हैं, मेरे फ़रिश्ते मेरे लिए क्या लिख रहे हैं, और क़यामत के दिन मुझे किस चीज़ का सामना करना होगा, ये मेरी फ़िक्र होनी चाहिए। लोग नहीं, हमारे घर वाले नहीं, हम नहीं, मगर कौन? अल्लाह ताला, वो मेरे लिए क्या करेंगे। The second category of examination which is to be carried out after the work is done, of three kinds. The first is to check the soul about an act of obedience in which it failed to fulfill the right of Allah Ta'ala. आपने जो भी अल्लाह ताला के फर्माबरदारी की तरफ आप जा रही थी, उसमें आपका कहीं न कहीं हम फेल होंगे, क्योंकि कोई इंसान जब अल्लाह ताला की इताअत की तरफ जाता है, फ़ौरन के फ़ौरन पास नहीं होता है। ये इम्तिहान थोड़ा से अलग होते हैं। अल्लाह ताला अलग किस्म का इम्तिहान लेते हैं। अक्सर हम कमज़ोर हो जाते हैं, अक्सर हम शिकायत कर जाते हैं, अक्सर हम ग़ीबत कर जाते हैं, अक्सर हम बुराई कर जाते हैं, अक्सर हम सब्र नहीं कर पाते हैं, अक्सर हम ज़ुबान से कुछ कह जाते हैं। तो अभी भी हम कहीं न कहीं अल्लाह ताला की इताअत में कमज़ोर हो जाते हैं। तो इस कमज़ोरी को हम चेक करें। अब मैंने ये नियत की अल्लाह ताला कि आज मैं फ़लाँ की बुराई नहीं करूँगी। मैंने ये नियत कर ली है। मगर क्या हो गया? आपने जो ये नियत की है, शैतान जान गया कि इसने ये नियत बाँध ली है। अब शैतान जानता है कि इसको कहाँ वलगराना है और कैसे इसको इस जगह हराना है। You're fighting a force out there, unseen forces. Number one is your nafs, number two is the shayateen out there. You're fighting unknown forces, but you have the ultimate force with you. That is Allah Azza wa Jal. Ultimate power with you. So whom are you seeking? Whose help are you seeking? Is it Allah Ta'ala? If it's Allah Ta'ala, you're going to win. But if it's shayateen, you're going to fail. Allahumma najini minan nar. तो जब भी हम कुछ करने जाएं, अगर हम कमज़ोर भी पड़ जाएं, उसमें हम घबराएं ना, हम क्या करें? अल्लाह ताला की मदद मांगे, क्या कह के? हस्बन अल्लाह। अगर शैतान के वसवसे मजबूत हो रहे हैं, क्या कहिए? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मुझे नहीं सुनना है शैतान के वसवसों को, मुझे मजबूत रहना है। अगर मैंने नियत की कि मैं फलाँ के साथ बदसलूकी नहीं करूँगी आज, अपनी बहन के साथ या अपने भाई के साथ या अपनी मम्मा के साथ या अपने फादर के साथ या अपने फ्रेंड के साथ, मैं उनको आज उनसे मैं कोई गलत बात नहीं करूँगी। तो यू हैव टू बी डिटरमाइंड।
अब शैतान आएगा, आपको इरिटेट करेगा, आपको परेशान करेगा। शौहर के साथ सबसे बड़ा इम्तिहान शौहर होता है। बीवी को आके वो इरिटेट करेगा, उल्टी सीधी वसवसे डालेगा कि देखो तुम्हारा शौहर तुम्हें इग्नोर कर रहा है, तुम्हारा शौहर तुम्हें से ऐसे के, और फिर आप रिएक्ट कर जाएंगी क्योंकि आप कंट्रोल नहीं कर पाई अपने आप को। यहाँ पे क्या हो गया? अल्लाह ताला की एक तरीके से नाफरमानी हो गई। तो यही कहा जाए, चेक, इफ यू हैव फेल्ड इट्स ओके, बट वी हैव टू ट्राई अगेन, ट्राई until we master it इंशाल्लाह ताला। कैसे? दुआएं हैं और कुछ नहीं है। दुआ है सब कुछ है, दुआ नहीं है तो इंसान कमज़ोर है। कौन सी दुआ पढ़ेंगे? अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व आइज़नी मिन शर्रि नफ्सी। ए अल्लाह, डालिए मेरे दिल में मेरे हिदायत को और बचाए मुझे मेरी नफ्स की बुराई से, ताकि मैं अपने शौहर के साथ बदसलूकी ना करूं, बच्चों के साथ ना करूं, अपने वालिदैन के साथ ना करूं, अपने भाई बहनों के साथ ना करूं, अपने दोस्त अपने अजीज रिश्तेदारों के साथ ना करूं, अपने ससुराल वालों के साथ ना करूं। या अल्लाह ताला मेरे अंदर सब्र डाल दीजिए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं सब्र करूंगी, इसका अजर आप मुझे देंगे इंशाल्लाह ताला। So we need to be really positive. If you need to fight the negativity in ourselves, it's not about others, it's about us. हमें अपनी नेगेटिविटी खत्म करनी है। सामने वाला जो नेगेटिव काम कर रहा है ये उसका अमाल है, ये मेरा अमाल नहीं है। हाँ, जो मैं नेगेटिव काम करूंगी मैं इसकी जिम्मेदार होंगी। तो मुझे अपना ख्याल रखना है इंशाल्लाह ताला। Now, it has been mentioned that the right of Allah subhanahu wa ta'ala in doing good act is fulfilled by taking care of 6 matters. अगर आप 6 चीज़ों का ख्याल रखेंगी, अल्लाह ताला हमारा ख्याल रखेंगे। वो 6 चीज़ें क्या हैं? Number 1, sincerity in doing it. आप जो कुछ भी करने जा रही हैं, आज मैं ये नियत कर रही हूँ अल्लाह ताला कि मैं अपनी ज़ुबान से किसी की भी बुराई नहीं करूँगी इंशाल्लाह ताला। बस आज का दिन, ये हम एक-एक दिन लेके चलें। महीना, हफ्ता लेके ना चलें, एक दिन, ताकि उस दिन को हमें टैकल करना, कंट्रोल करना, उसको हमें एनालाइज़ करना आसान हो जाए। तो जस्ट टेक दिस डे टुडे कि अल्लाह ताला आज मैं अपनी ज़ुबान से किसी की बुराई नहीं करूँगी बिइज़्निल्लाह। तो नियत क्या है? वाहिद अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए और अपने गुनाहों को माफ़ कराने के लिए। ऑनेस्टी, कितनी ऑनेस्ट हैं अब आप? अब remember, mark my words, the moment you're going to make a niyyah to fix yourself, to change yourself into a better human being, अगर आपने कोई एक नया अपने लिए जो बनाए बात कि मैं ये नहीं करूँगी, शैतान तैयार हो जाएगा, इब्लीस तैयार हो जाएगा, क्योंकि इब्लीस जानता है कि इसने ये नियत की है, अब वो आपको अटैक कराएगा। तो आपको क्या रहना है? ऑनेस्ट रहना है अपने आप से कि नहीं, जब मैंने ये ठान लिया तो मैंने ठान लिया। आई एम डिटरमाइंड, आई एम नॉट गोना बैकबाइट, आई एम नॉट गोना स्पीक बैड अबाउट एनीबॉडी टुडे इंशाल्लाह ताला। शैतान विल कम टाइम एंड टाइम अगेन, आपके अंदर वसवसे डालेगा, मगर हमें बिइज़्निल्लाह मजबूत होना है। कैसे? या मुक़ल्लिबल क़ुलूबी सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। ए दिलों को फेरने वाले, मेरे दिल को अपने दीन पर मजबूत रखिए, ताकि मैं अपने कदम को डगमगाऊँ ना। I shouldn't wobble, I shouldn't fall down, I should be strong and determined कि I'm not going to backbite. मैं किसी की बुराई नहीं करूँगी, चाहे वो मेरी सगी हो, चाहे मेरे गैर हो, मैं नहीं करने वाली बिइज़्निल्लाह। Alright, next, following the Prophet in exacting it. अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? गीबत का क्या है? बुराइयों का क्या अंजाम है? बहुत बुरा अंजाम है। जो लोग कलाम पाक को ले लीजिए, जो लोग गीबत करेंगे वो गोया अपने भाई का गोश्त खाने के बराबर है। क्या आप पसंद फरमाएंगी? नहीं पसंद फरमाएंगी। कोई कच्चा गोश्त खाता है? कोई नहीं खाता। वो भाई का, अल्लाहुम्मा नज्जिनी मिनन नार। गीबत की बुराइयों का ये अंजाम होता है कि इंसान अपनी नेकी उनको दे रहा होता है। क्या हमारे पास इतनी नेकी है आज कि हम औरों को बांटें, औरों के नाम अपनी नेकी लिखाएं? नहीं। तो हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल को फॉलो करना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत में आज तक हमें नहीं मिला कि उन्होंने किसी की बुराई की होती, किसी की गिबत की होती, कभी नहीं। अगर आज हम मुसलमान का दावा देते हैं अपने आप को लेकर के, तो मुसलमान बने सही में इंशाल्लाह ताला। नया साल शुरू हो गया है, मुहर्रम का नया नया महीना शुरू हो गया, नया साल है ये हमारा। Let us try to genuinely show कि yes, we can change Allah subhanahu wa ta'ala, we can become a better Muslim inshallah ta'ala. Resolution, ये नया resolution हमारा होना चाहिए कि अल्लाह ताला आज के दिन मैं बुराई नहीं करूँगी किसी की इंशाल्लाह ताला। Just for your sake, Ya Allah Ta'ala. And let us be determined. Let us take up this test or task today for ourselves, inshallah ta'ala.
Then remembering Allah Ta'ala's bounty in it. मैं जो अपने आप को गीबत से रोक रही हूँ, पता है क्या हो रहा है? मेरे अंदर तकवा आ रहा है। कैन यू इमेजिन कि जब मैं अपने आप को किसी की बुराई करने से रोक रही हूँ तो मेरे अंदर अल्लाह ताला का खौफ आ रहा है और मेरे अंदर अल्लाह ताला की मोहब्बत आ रही है कि मैं अल्लाह ताला की खौफ से बुराई नहीं कर रही हूँ, अल्लाह ताला की मोहब्बत यानी उनकी अजर पाने के लिए मैं वो गीबत नहीं कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। तो रिमेंबर व्हाट यू आर डूइंग, यू विल बी डेफिनेटली रिवॉर्डेड। अल्लाह ताला आपको इसका अजर 100% देंगे, 100% विदाउट फेल। इट्स अ विन विन सिचुएशन भी इज़्निल्लाह। तो याद रखिएगा आपकी कोई नेकी ज़ाया नहीं जा रही है। रियलाइजिंग हिज फेवर इन इट, रियलाइज कीजिए कि अगर मैंने किसी की बुराई से अपने आप को मैं रोक रही हूँ, किसी की गिबत से रोक रही हूँ, तो इसके बदले अल्लाह ताला मेरे लिए क्या खैर देने वाले हैं। अल्लाह ताला मेरी मुश्किलों को दूर करेंगे, अल्लाह ताला मुझे रिस्क देंगे, अल्लाह ताला मेरे मेरे बच्चों में खैर डालेंगे, अल्लाह ताला मेरे बच्चों को मेरे लिए सदका जारिया बनाएंगे। आमीन या रब। तो मेरे अंदर एक नियत है कि आज मैं जो भी नेकी कर रही हूँ अल्लाह ताला, मैं इस नेकी को इसलिए बो रही हूँ ताकि आप इसको मेरे लिए बेहतरीन अजर में बदल दीजिए, बेहतरीन अजर के बागात में बदल दीजिए। आमीन या रब। जन्नत के महलों में बदल दीजिए। आमीन या रब। तो ये मेरी नियत है कि मैं आज अपने आप को इसलिए इस गीबत से रोकूंगी कि अल्लाह ताला आप मुझसे राज़ी हो जाइए, आप मुझको अपनी इनायत से बख्श दीजिए, आप मेरे पे अपने रहम फजल दे दीजिए। आमीन या रब। अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दीजिए। इस नीयत से आज मैं किसी की बुराई नहीं करूँगी अल्लाह ताला, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको राज़ी करने के लिए इंशाल्लाह। एंड एडमिटिंग हिज ओन इनएफिशिएंसी इन इट। और मैं ये जानती हूँ अल्लाह ताला कि अगर मैं किसी की बुराई करूँगी तो ये मेरी कमी है, ये मेरी खामी है, ये मेरी बुराई है अल्लाह ताला। और अब मैं अपने आप को बुरा इंसान नहीं बनाना चाहती हूँ। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्त मिनज़ ज़ालिमीन। कि या अल्लाह ताला मैं ज़ालिम थी, मैंने अपने ऊपर जुल्म किया था, मैंने वो गुनाह किया था, मैंने वो बदसलूकी की थी, मैंने वो बदज़ुबानी की थी अल्लाह ताला। मैं ज़िम्मेदार थी, वो ज़िम्मेदार नहीं थे। और उन्होंने कुछ किया भी था तो वो उनका ज़िम्मा है, दैट्स नॉट माय कंसर्न। मैं कहा अल्लाह ताला मैं फ़ेल हो गई थी, मैंने गलती कर दी थी, अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दीजिए। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। मेरी प्यारी अज़ीज़ बहनों, he has to examine whether he has passed all these stages successfully। इंशाअल्लाह मैं आप लोग को जो है कल आगे सेकंड स्टेज पे मैं लेके जाऊंगी इंशाल्लाह ताला। तो यही है, अल्लाह ताला हम सबको